الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اصول و مبادئات رد الالحاد. الحمدللہ ہم نے ابھی تک 9 درس ریکارڈ کی ہے، آج 10واں درس ہے، اور ابھی تک ہم تقریباً 19 صفحے پڑھ چکے ہیں، جو ہمارا کتاب ہے اصول و مبادئات رد الالحاد. ہم نے کل کے درس میں 2 اصولوں کو بیان کیا تھا. ہم نے جو الحاد کے لیے چند اہم مفید اور اصول بیان کی ہے، ان میں 2 اصولوں کو ہم نے بیان کیا تھا. کہ اصل نمبر 1 یہ تھا کہ کسی چیز کا سمجھ عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہوگی. اس پر ہم نے مکمل گفتگو کی ہے. اور دوسرے نمبر پر جو اصل ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس بات کو ماننا خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ اس بات کو ماننا لازم ہے. اب ہم آتے ہیں پھر اس طرح تیسرا اصل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے، اور مستعبد ہونا اور چیز ہے. ہم نے ابھی تک 9 درس ریکارڈ کی ہے، ان میں ہم نے 4 اصولوں کو بیان کیا ہے. پہلے نمبر پر اصل جو تھا کہ کسی چیز کا سمجھ عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہوگی. دوسرا اصل جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس بات کو ماننا عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس بات کو ماننا لازم اور واجب ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر ہم نے جو اصل بیان کیا تھا وہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستعبد ہونا اور چیز ہے. اس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی ہے، اگر ساتھی سننا چاہتے ہیں تو سن لے درس نمبر 9 میں. اور اصل نمبر 4 جو ہم نے بیان کیا تھا کہ موجود ہونے کے لیے مخصوص کرنا اور مشاہدہ کرنا لازم نہیں ہے. ان اصولوں کے ذریعے آپ لوگوں نے ملحدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اب آتے ہیں اصل نمبر 5 نمبر کی طرف. اصل نمبر 5، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ منقولات محض پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. مدعی سی دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں ہے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ہماری تاریخی جو روایات ہے نا، یہ منقولات محض ہے، کیونکہ تاریخی اقوال میں جو تاریخ ہے، جس طرح تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ طبری ہے، اسی طرح اور جو تواریخ ہے، ہماری تاریخ کی کتابیں ہیں نا، یہ منقولات محض ہے، کیونکہ ان میں اکثر اسرائیلی روایات بھی ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی ملحد آپ سے سوال کر دے کہ اس پر دلیل پیش کر دے، تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یار منقولات محض پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کروں گا. تو میں مولانا بلال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اصل نمبر 5 سے شروع کر دیں کہ منقولات محض پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل نمبر 5، منقولات محض پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. وضاحت: مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ چنگیز خان نے بہت سے ملکوں پر حملے کیے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اس بات پر دلیل پیش کرو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معتبر مورخین نے ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک چیز جب صحیح نقلی خبر کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا واجب ہے. تو جب کوئی چیز صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا واجب اور لازم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اویس اقبال جو مشہور ملحد ہے نا، اس نے جو مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ کے ساتھ جو اس نے گفتگو کی، اس نے ایک اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ یار تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی محض 6000 سال ہے، حالانکہ سائنس کا نظریہ ہے کہ دنیا تقریباً 14 ارب سال پہلے بن چکی ہے. تو ہم اویس اقبال کو جواب دیتے ہیں، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے مسلمات سے انکار نہیں کرنا ہے کہ آپ کہو کہ میں نہیں مانتا. نہیں، ہم مانتے ہیں. ہم نے اصولوں کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اے منقولات محض ہے، تاریخی جتنی بھی روایت ہے اے منقولات محض ہے، اس پر دلیل ضروری نہیں ہے.
हमारा ये अकीदा नहीं है। दलील अकीदे पर मांगी जाती है। जब भी मुल्हिद आपसे दलील मांगे ना, और उस चीज का ताल्लुक आपके अकीदे के साथ ना हो, तो फिर आप उसे कहो कि असल नंबर 5 से आप लोगों ने इनको इस्तेदलाल करना है कि भाई ये मनकूलात महजा है। जिस तरह तारीख में आया है कि चंगेज खान इसी तरह सिकंदर आजम गुजरा है ना, सिकंदर आजम गुजरा है। अब अगर हम मुल्हिदीन से सवाल कर दे कि इस पर दलील पेश कर दो, तो क्या पेश करेंगे? वो सिर्फ मोतबर मौरखीन ने जिक्र किया है, बस ये जिक्र करना है। अब तारीख इब्न कसीर में जो लिखा है कि दुनिया की जिंदगी 6000 साल है, ये तो हमारा अकीदा नहीं है, एक रवायत है। जिस तरह कदीम फलसफा का नजरिया था कि मादा कदीम है, मादा ये कदीम जमाने से आ रहा है, कदीम है, ये कायनात भी वो कदीम मानते हैं, तो उनका भी एक नजरिया था। इसी तरह इसराइली रवायत में जो है बाइबल से लिख लिया गया है कि दुनिया की जिंदगी 6000 साल है, ये हमारा अकीदा नहीं है। अब साइंस ने नजरिया पेश कर दिया कि दुनिया की जिंदगी 14 अरब साल है, ये भी हमारा अकीदा नहीं है। हम कहते हैं कि इससे हमारे अकीदे का कोई भी ताल्लुक नहीं है, चाहे 6000 साल हो और चाहे 14 अरब साल हो, तो ये मनकुलाती महज के जुमरे में आता है। आप लोगों को सिर्फ हमें समझाना चाहते हैं कि मनकुलाती महज के जुमरे में जो चीजें आती हैं, उस पर अगर आपसे मुल्हिद मुतालबा कर दे, तो आपने उसको कहना है कि यार इस पर दलील का मुतालबा करना सही नहीं है। इसी तरह आप मिसाल उससे पेश कर दे। इसी तरह जंग अजीम अव्वल और दोम तो हमने देखा नहीं है। इसी तरह कबल अज तारीख जितने भी वाकयात गुजर चुके हैं, अरस्तु, अफलातुन, सकरात जितने भी गुजर चुके हैं, उनको हमने देखा नहीं है। तो हम क्यों मानते हैं? ये मानते इसलिए है कि ये मुतबर मौरखीन ने जिक्र की है। जिस तरह जब एक चीज सही नकली खबर के साथ मुतबर मौरखीन का जिक्र करना, ये सही नकली खबर है, इसके साथ अगर साबित हो जाए तो उस पर हाँ, तो उसका मानना लाजिम है। तो ये असल नंबर 5 हुआ कि मनकुलात महज़ा पर दलील कायम करना सही नहीं है। इसी तरह बहुत से ऐसी साइंस की जो नजरियात है ना, क्या इन पर मुल्हिदीन हमें दलील दे सकते हैं? इसकी जितने भी अक्सर मनकुलात है, साइंस के अक्सर मनकुलात हमें दलील नहीं दे सकते। जिस तरह बिग बैंग के बारे में, मादा पैदा हुआ, हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं ना, ये मनकुलात है। साइंस ने एक नजरिया पेश किया है कि मादा खुद ब खुद पैदा हुआ। अब किसी चीज को बनने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। किसी किसी चीज का किसी किसी चीज को वजूद में आने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। इसके लिए बनाने वाला मौजूद होना जरूरी है, जिसे हम फाइल कहते हैं। इसके लिए मटेरियल मादा जिसे हम कहते हैं, ये जरूरी है। और तीसरे नंबर पर इसका शक्ल और सूरत, ये जरूरी है। और चौथे नंबर पर इसका मकसद, अगर इसका मकसद ना हो तो इल्लत ताम नहीं बन सकता। तो साइंस की जितने भी मनकूलात है, हम कहते हैं कि मजहब और साइंस की कभी दरमियान में इख्तिलाफ हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों के दायरा में फर्क है। एक मादे से बहस करता है और दूसरी दूसरी गैर मादी अशिया से बहस करता है। एक सिर्फ ज़न्नियात पर बहस करता है और दूसरी हाँ कतियात पर बहस करते हैं। एक में एहतिमालात होते हैं, साइंस में एहतिमालात पर बहस होती है कि एहतिमाल होता है, नजरियात होते हैं। और मजहब में अकीदे पर बहस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर जितने भी हमारे मुकदमात है ना, इस पर हमारे पास दलाइल मौजूद है। तो दलील नंबर 5 ये हुआ कि मनकूलात महज़ा पर दलील कायम करना सही नहीं है। जिस तरह तारीखी अकवाल है, इस पर हमसे अगर दलील का मुतालबा कर दे, तो आप लोगों ने इनको ये बताना है कि दलीली मनकूलात महज़ा के जुमरे में आते हैं, इसके लिए दलील हो। फिर अगर वो ना माने, तो आप लोगों ने इनसे सवालात करने हैं कि जितनी भी तारीखी अशिया, जितनी भी तारीखी शख्सियात मौजूद है, इसके बारे में दलील पेश कर दे। तो वो क्या पेश करेंगे? सिर्फ मोतबर मुअर्रिखीन के अक़वाल पेश करेंगे। तो आप कहोगे कि यार बस जब मोतबर मुअर्रिखीन ने जिक्र किए है तो ये हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन इसी तरह अकायद की बात भी जब आती है ना, जब एक सच्चा आदमी आपको खबर दे दे, तो आपको वो भी मानना लाजिम और जरूरी बन जाता है। अब है तो दलील नंबर असल नंबर 5 हुआ। असल नंबर 6 की तरफ आते हैं कि दलील अलग चीज है और नजीर अलग चीज है। इस पर
मुल्हिदीन क्या करते हैं? मुल्हिदीन मुद्दई की जिम्मा होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दलाइल अक्ली और नकली पेश कर दे। और बाज़ उलमा किराम ऐसे हैं कि वो मुद्दा अलैहि बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार आप लोग भी तो दावा कर रहे हो कि अल्लाह मौजूद नहीं है, ये दावा करना कि नहीं है, इस पर आप दलील पेश कर दो। वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा खुद ज़ौक और शौक क्या है, मैं खुद इस ज़ौक और शौक का मालिक हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद मुद्दई बनना पसंद करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अक्ली और नकली दलाइल के अंबार है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला इनको कबूल। मुल्हिदीन क्या करते हैं? मुल्हिदीन हमसे नज़ीर का मुतालबा करते हैं। जब आपने इन उसूलों को पढ़ा हुआ होगा ना, तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो नज़ीर मांगता है और मुद्दई से दलील मांगा जाता है कि न कि नज़ीर। तो असल नंबर 6 पर मौलाना बिलाल साहब आप इबारत पढ़े, इंशाल्लाह मैं इसकी तशरीह कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। असल नंबर 6, दलील अलग चीज है और नजीर अलग चीज है। मुद्दई से दलील का मुतालबा जायज है मगर नजीर का मुतालबा जायज नहीं है। वजाहत, मुद्दई से दलील का मुतालबा कर सकते हैं लेकिन नजीर का मुतालबा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से सांप का बनना, तो इसके बारे में दलील का मुतालबा कर सकते हैं लेकिन नजीर का मुतालबा नहीं कर सकते कि मुझे दिखाओ ये बात सही नहीं है। दलील, तमाम जितने भी मुकदमात होते हैं दुनिया में, और दुनिया की तमाम अदालतों में फैसला किससे होता है? आपने सबसे पहले मुल्हिद से बात करनी है। जब भी वो आपसे नज़ीर का मुतालबा कर दे कि मुझे दिखा दो, आप मुसलमान कहते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से सांप बनना था, हमें दिखा दो। मुसलमान मुल्हिद हम पर सवाल करते हैं कि यार आप लोग कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करता था, तो हमें एक मुर्दा जिंदा कर दो। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटी जूती वो पहाड़ से निकल आई थी, हमें दिखा दो। तो आप लोगों ने इसको ये जवाब देना है कि मुद्दई से दलील का मुतालबा किया जाता है, नजीर का नहीं है। हम दलाइल अक्ली और नकली इसके बारे में पेश कर सकते हैं, लेकिन नजीर पेश नहीं कर सकते। दलाइल अक्ली क्या है और दलाइल नकली क्या है? दलाइल नकली ये है कि ये मोतबर किताब में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है, ये सच्चा किताब है, इसमें वजाहत मौजूद है। जिस तरह चंगेज खान गुजर चुका है, जिसी तरह हलाकू खान, जिसी तरह सिकंदर आजम आपने देखा नहीं है लेकिन मोतबर मुअर्रिखीन बयान करते हैं, आप मानते हो। इसी तरह कुरान करीम ने वजाहत की है, सच्चा किताब है, आप क्यों नहीं मानते? और एक नकली दलील ये भी है कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे, सब ने देखा था कि सांप लाठी से सांप बनता था, सब ने देखा था कि पहाड़ से ऊंटी निकल आई है, तमाम लोगों ने वहां गवाही दी थी। इसी तरह हजरत ईसा अलैहि सलाम जब मुर्दों को जिंदा करता था, तो वहां तमाम लोग देखते थे, तमाम लोग उसका नजारा देखते थे, उसका मुशाहदा करते थे कि देखो ये शख्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम को मोजिजात ऐसे अता किए थे कि उस वक़्त के मुताबिक थे, उस माहौल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अंबिया किराम को मोजिजे अता किए थे। जब पैगंबर को नबूवत मिलती थी तो उससे लोग मोजिजात तलब करते थे कि आप कैसे पैगंबर हो, कि अगर अंबिया किराम के पास मोजिजात ना होते तो फिर लोग ईमान उस पर कैसे लाते? हजरत मूसा अलैहि सलाम की जो उस वक़्त हजरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में, हजरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में जादूगरों का, जितने भी जादूगर थे वो मुख्तलिफ के जरिए लोगों के जहनों को वो मुंतशिर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को ऐसा मोजिज़ा अता किया कि सब सब उससे आजिज आ गए। कुरान ने उसकी वजाहत की है कि तमाम जितने भी जादूगर थे सब हजरत मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए थे। ये नकली दलील से साबित है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहि सलाम की वक़्त में तिब का जमाना था, लोग कह रहे थे कि हमें इलाज कर सकते हैं, हमें कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को ऐसे मोजिज़ात अता किए कि तमाम डॉक्टर मेडिकल वाले तमाम उससे आजिज थे। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो उस वक़्त फसाहत और बलागत थी। फसाहत और बलागत के जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को उतारा और वजाहत की, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, लाओ कुरान जैसा। अब मुल्हिदीन भी अजीब लोग हैं ना। मुल्हिदीन चंद अरबी अशआर आगे पीछे करते हैं और कहते हैं कि यार हमने कुरान का
मिसल बना लिया है। हम कहते हैं कि कुरान करीम का जो अव्वल मुखातिबीन थे ना, और कुरान करीम ने चैलेंज किसको किया था? अरब को किया था। अब हम पठान है ना, हम अपने पश्तो की जो लुगत है ना नहीं समझते, तो गैर जबान वाला पश्तो की जो लुगत है वो कैसे समझेगा? आप अरबी समझते नहीं और आप आते हो कुरान का मुकाबला करने के लिए। अगर फसाहत और बलाहत के बावजूद तमाम अरब उससे आजिज आ गए, तो आप कैसे कहते हो कि आप तो खुद अरबी पढ़ा लिखा भी नहीं हो और आप कहते हो कि मैंने कुरान का मुताला किया है? हम 10-15 सवालात करते हैं। जिस शख्स ने कुरान को अव्वल ताखिर पढ़ा नहीं है वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं कुरान का मुकाबला करूंगा? हम जब मुल्हिदीन का रद्द करते हैं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम बिग बैंग के नजरिए पर उबूर रखते हैं, इसी तरह इर्तिका के नजरिए पर, ग्रेविटेशन जितने पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको समझते हैं, हम इसलिए इस पर रद्द करते हैं। अब अगर कोई बिग बैंग का नजरिया जानता भी ना हो, वो बिग बैंग पर कैसे रद्द करेगा? पहले आप कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, बाद में अगर कुरान का आपने चैलेंज पूरा किया है तो फिर हम मानेंगे। लेकिन अभी तक फसाहत और बलागत के बावजूद अरब उससे आजिज आ गए, तो आप कैसे कह सकते हो आपने कुरान का चैलेंज मुकम्मल किया है? हम इससे सवाल करते हैं कि जो इंसान कुरान का मुकाबला करना चाहता है, उसके बारे में क्या कुरान करीम में मौजूआत और मजाबिन के तिकरार और इआदा बार बार क्यों हुआ है? कितने मौजूआत ऐसे हैं, हम सवाल करते हैं, कुरान करीम में कितने मौजूआत ऐसे हैं जिनका एक इआदा और तकरार हुआ है बार बार? ये हमें बता सकते हैं? नहीं है, नहीं बता सकते। इसी तरह माशरे के बारे में कुरान करीम की तालीमात क्या है? कुरान करीम से कैसे रहनुमाई हासिल हो सकती है? ये बता सकता है? नहीं बता सकता। इसी तरह तीसरे नंबर पर कायनात के मकसद के बारे में कुरान करीम का क्या नजरिया है? फल्कियात के बारे में कुरान करीम का नजरिया क्या है? इसी तरह बहुत से सवाल हम मुल्हिदीन से करते हैं। कुरान करीम अपना तारुफ दुनिया के सामने कैसे पेश करता है? इसी तरह कुरान करीम मुख्तलिफ आदियान के बारे में क्या नजरिया रखता है? कुरान करीम मुस्तशरिकीन ने बहुत जोर लगाई। मुस्तशरिकीन ने गोल्ड जहीर, विलियम म्योर, इसी तरह और जितने भी जो मुस्तशरिक थे ना, इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर किताबें लिखी है, लेकिन कुरान करीम का मुकाबला नहीं किया है। क्यों नहीं किया? वो तो अरबी भी जानते थे। मुस्तशरिकीन अभी तक आजिज है कि कुरान का एक भी सूरत वो नहीं बना सकते कुरान जैसा। जब मुस्तशरिकीन मुताला के बावजूद आजिज आ गए, तो मुल्हिदीन बगैर मुताला के कैसे कुरान करीम का मुकाबला कर सकते? कुरान करीम ने जो उसूल बताए हैं, उन जैसी उसूल किसी किताब में मौजूद है? तो बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम में फसीह और बलीग किताब है। तो मुजज़ात पर बात हो रही थी। मुजज़ात हम दिखा नहीं सकते, अलबत्ता उसके बारे में हम दलाइल अकली और नकली से उसको समझा सकते हैं। दलील नकली तो हमारे पास कुरान करीम मौजूद है, और दलील अकली के बारे में है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दरख्त बना सकता है, एक लाठी बना सकता है, तो उस लाठी से अल्लाह रब्बुल इज्जत सांप भी बना सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर कादिर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर मादा नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मादा बनाया, फिर कायनात फैला, फिर इसमें पहाड़ भी आ गए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर मादे के पहाड़ बना सकता है, तो उस पहाड़ से ऊंट क्यों नहीं निकल सकती? मुजज़ात कहते भी हैं खैर क़यादत काम को, जो लोगों की समझ में ना आए, इसे खैर क़यादत कहते हैं, वैसे मुजज़ात कहते हैं। अगर इंसान भी ऐसा कर दे, तो फिर खालिक और मखलूक में क्या फर्क हुआ? फिर लोग क्यों ईमान लाएंगे? जब इंसान भी कहे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो फिर तो ये मोजिजा ना हुआ। मोजिजा कहते भी है ऐसी काम को कि इंसान का अकल दंग रह जाए कि वाकई ये अल्लाह का नबी है। और मोजिजात अता भी इसलिए हुए थे कि लोग ईमान लाते थे इस पर, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम उस कौम में मौजूद था। अब इसने दावा नबूवत किया, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोजिजात दी, और मोजिजात के जरिए बहुत से लोग बनी इसराइल इस पर ईमान लाए। उस वक़्त के मोतबर मुअर्रिखीन ने लिखे, उस वक़्त जितने भी मुसलमान थे मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाने वाले थे, इस वजह से ईमान लाए थे क्योंकि मूसा अलैहि सलाम के पास सच्चे मोजिजात मौजूद थे। तो असल नंबर 6 जो है, मुद्दई सी असल नंबर 6 जो है कि मुद्दई सी दलील का मुतालबा
तो किया जा सकता है, नजीर का नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दुनिया की तरफ। दुनिया में जितने भी मुकदमात है, आप किसी जज के पास चले जाओ, आप किसी तमाम अदालतों में चले जाओ, वहां फैसले किस पर होते हैं? तो वहां फैसले दलील पर होते हैं। नजीर क्या है? नजीर ऐसा है कि अगर कोई शख्स जुर्म कर दे, किसी को एक थप्पड़ मारे ना, और जज अगर उससे नजीर का मुतालबा कर दे, तो उस पर ये लाजिम है कि ये मुजरिम दूसरे शख्स को भी उसी तरह थप्पड़ मारे। ये नजीर है। हम नजीर पेश नहीं कर सकते दुनिया में कोई भी शख्स। आप आप मुल्हिद से सवाल कर दो कि क्या आप नजीर पेश करने पर कादिर हो? चलो पेश कर दे। आप अपने बाप को बाप क्यों कहते हो? अपने नसब के बारे में आप नजीर पेश कर दो। पेश कर सकेंगे? नहीं पेश कर सकते। दुनिया के जितने भी मुकदमात है, कत्ल का मुकदमा हो, चोरी का मुकदमा हो, जितने भी मुकदमात है, ये नजीर पर हल नहीं हो सकते, दलील पर हल हो सकते। जब दुनिया के बारे में जब दुनिया के बारे में यह कायदा और कानून है, यार हम दलील से चीज को साबित कर सकते हैं, नजीर से नहीं कर सकते, तो फिर मजहब के बारे में हमसे नजीर का मुतालबा क्यों करते हो? ये कहते हैं कि यार इस्लाम के पहुंच से अकायद खिलाफ अकल है। क्यों खिलाफ अकल है? ये कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि जन्नत में इतनी बड़ी दरख्त होगी जिसमें जिस जिसके साये में जिसके साये से 1000 साल एक दौड़ा गुड़े, ये खिलाफ अकल बात होगी। हम कहते हैं इसमें खिलाफ अकल क्या है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक छोटा अल्लाह रब्बुल इज्जत जब एक छोटी सी दरख्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जब एक छोटा दरख्त बना सकता है तो बड़ी नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? अब हमारे जिस्म की 5-6 फुट 3 फुट इंसान मौजूद है जन्नत में, 130 132 फुट की कत होगी इंसानों की। अब ये कहते हैं कि ये खिलाफ अकल है। हम कहते हैं क्यों खिलाफ अकल है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक 5 फुट 6 फुट का इंसान बना सकता है तो 130 फुट और 140 फुट इंसान बना नहीं सकता? क्यों नहीं बना सकता? तो इस्लाम के बहुत से मुकदमात ये मावरा अकल है, लेकिन मुल्हिदीन को क्या नजर आते हैं? मुल्हिदीन को खिलाफ अकल नजर आते हैं। तो असल नंबर 6 पर हमने जो 2 उसूल आज बयान किए हैं ना, कि एक मनकुलात महज़ा पर दलील कायम करना सही नहीं है, और दूसरे नंबर पर दलील अलग चीज है और नजीर अलग चीज है। मुद्दई से दलील का मुतालबा तो किया जा सकता है, मगर नजीर का मुतालबा जायज नहीं है। नजीर का मुतालबा क्यों नहीं पेश कर सकता? क्योंकि दुनिया की तमाम अदालतों से भी यही होता है। दुनिया की तमाम अदालतों में भी फैसला दलील पर होता है। अब एक सवाल यहाँ पर जहन में आता है, एक सवाल जहन में आता है कि हम नजीर क्यों पेश नहीं कर सकते? एक सवाल अगर आपके जहन में भी आए, यार हम नजीर पेश करने से क्यों आजिज हैं, तो इसके बारे में जवाब आप लिख ले मौलाना, या आप लिख लीजिए, फिर आपको बार बार सवाल जहन में आएगी। एक सवाल जहन में आता है कि हम नजीर क्यों पेश नहीं कर सकते, तो इसका जवाब यह है कि हमने अभी तक अकल के तजुर्बे में नहीं लाया है, हमने नहीं देखा है, हम उस चीज को अकल के तजुर्बे में नहीं लाया है, इसलिए हम नजीर पेश नहीं कर सकते। तो यह उसका जवाब हुआ। तो नजीर के बारे में वजाहत भी हो गई। इसी तरह साइंस के जितने भी मुकदमात हैं, ये दलील से साबित होते हैं या नजीर से? ये दलील से साबित होते हैं। दलील बाज चीज हवास के जरिए साबित होती है, बाज चीज अकली इस्तिदलालात के जरिए साबित होती है, और बाज चीज नकली खबर के साथ साबित होती है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको नबूवत अता हुई तो सबसे पहले तमाम इंसानों के सामने अपने आप को पेश कर दिया। नबी अलैहि सलाम ने कौम से कहा कि लबिस्तु फीकुम उम्रा, मैंने तो आप में जिंदगी गुजारा, मैंने तो आप में जिंदगी गुजारी है, मुझे कैसे पाए? तो सबने कहा कि आप सादिक है, आमीन है। जब एक सादिक आदमी जिसने दुनिया में कभी भी झूठ नहीं बोला है, और वो आपसे कहे कि मैंने अल्लाह को देखा है, जन्नत को देखा है, मेरे पास आसमान से वही आती है, तो फिर आप किस दलील से उसका इनकार करोगे? तो फिर आप किस दलील से उससे इनकार करते हो? दुनिया के बारे में आप बातें हैं ना, अगर आपको कोई एक सच्चा आदमी खबर दे दे, यार एक्सीडेंट हुआ है, वाकया हुआ है, तो आप मानते हो, क्योंकि आप के जहन में बात है कि ये सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोलता। जब दुनिया के बारे में जब दुनिया के बारे में आप एक शख्स की बात मान सकते हो, तो अपने मकसद के बारे में आप क्यों
बात नहीं मान सकती। इंसान की तख्लीक को देखो, इंसान के लिए इंसान में जो खसूसियात है, इस बात की दलील है कि हमसे बास पुरुष होगी, हमारे लिए कयामत का दिन मुकर्रर है, वहां जजा और सजा इंसान के लिए बना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अकल अता की है, शऊर अता की है, हमें बोलने की सलाहियत दी है, हमें हवा से हम तालीम दी है कि हम इसके जरिए सोचे, हम देखे कि हमारी जिंदगी का मकसद मालूम है। अगर कयामत का दिन ना होता, अगर कयामत की दिन ना होती, तो फिर हम भी मजबूरी महज होते। जिस तरह सूरज मजबूरी महज, इसी तरह सूरज मजबूरी महज है, जिसी तरह चांद है, जिसी तरह जमीन है, जिसी तरह नबातात है, जिसी तरह जमादात है, ये तमाम कवानीन फितरत की ताबे है, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकते। हमें जिंदगी कामिल क्यों अता की है, हमें कामिल जिंदगी क्यों अता की है, हमें मुकम्मल जिंदगी क्यों अता की है, हमें आजादी क्यों अता की गई है। हमें आजादी इसलिए अता की गई है कि हम इसके जरिए पहचान ले, इंसान तो बेजान सा पत्थर तो नहीं है, इंसान तो बेजान सा पत्थर तो नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर तो नहीं है, तो इल्म का चश्मा या समंदर तो नहीं है, पर रब की निगाहों में तो कमतर भी नहीं है। पहचान आज अपने हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तो बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर की किसी पर के बराबर भी नहीं है। इंसान अपने आप को पहचान लो। एक एक दो दिन की जिंदगी पर आप अपने आखिरत से क्यों गाफिल हो रहे हो, दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे लगे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वजाहत की है, मुख्तसर वजाहत हमने की है कि हमने दो उसूल आज बयान की है, दलील नंबर 5 और दलील असल नंबर 5 और असल नंबर 6 के मनकूलात महज़ा पर दलील कायम करना सही नहीं है और इसके लिए दलील का मुतालबा करना सही नहीं है। और असल नंबर 6 हमने जो वजाहत की है कि दलील अलग चीज है और नजीर अलग चीज है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 सफ़हात पढ़ चुके हैं और दलील नंबर 7 कल इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।